سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ یا کچھ اور؟ جنگ کے گنجان آباد علاقے رانا کالونی میں رات گئے سے سوئی گیس بندش نے مکینوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ گھروں میں کھانا پکانا ناممکن ہو گیا۔ شہر کے دیگر علاقوں میں بھی سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ طویل ہونے لگی۔ اسی پر بات کریں گے وسیم مزید سے۔ جی وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جنگ شہر کا گنجان آباد علاقہ ہے رانا کالونی، جہاں پر رات گئے سے سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ سوئی گیس نہیں ہے، جس کے باعث سے یہاں پر جتنے بھی رہائشی ہیں انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے، خاص طور پر امور خاندانی چلانے میں شدید مشکلات درپیش ہیں۔ میرے ساتھ کچھ اہل علاقہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ کل رات سے ہمارے یہاں گیس نہیں ہے اور صبح ناشتے کے ٹائم بھی نہیں ہے، بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے اور بل آ جاتے ہیں، بھاری بھرکم بل آ جاتے ہیں اور بڑے مسائل ہمیں ان سے نجات دلائی جائے۔ جی بالکل، بھاری بھرکم بل آ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ کچھ اور اہل علاقہ بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پر رات گیس سے اب تک سوئی گیس نہیں ہے تو کھانا وغیرہ کہاں سے بنا رہے ہیں؟ کھانا بازار سے آتا ہے تقریباً، بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، غریب آدمی ہیں، ہوٹلنگ کرتے ہیں۔ جب بچے دوپہر میں آتے ہیں تو کھانا ٹھنڈا ملتا ہے انہیں۔ بچے ہمارے بیمار ہو رہے ہیں، لہذا ہمارا وزیر اعلیٰ سے یہ گزارش ہے کہ اس پہ کوئی ایکشن لیا جائے۔ جی بالکل، شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ طویل ہو گئی ہے، خاص طور پر اگر رانا کالونی کے علاوہ دیگر علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہے وہ اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے بھی بڑھ چکا ہے۔ اگر کھانے کے اوقات کی بات کی جائے تو اس ٹائم بھی سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ طویل ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پر پریشر کی کمی کے مسائل متعدد علاقوں میں سامنے آ رہے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے حکام اعلیٰ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کو کم کیا جائے اور اس کے پریشر کو بہتر کیا جائے تاکہ ان کو جی بہت شکریہ وسیم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ محلہ راجہ میں 2 دن سے پانی کی سپلائی بند، پائپ لائن پھٹنے سے سپلائی معطل ہوئی۔ مکین دور دراز علاقوں سے پانی بھر کر لانے پر مجبور ہو گئے۔ مزید بات کریں گے کمیل حیدر سے۔ جی کمیل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، محلہ راجہ کے اندر پانی کی پائپ لائن پھٹنے کی وجہ سے پانی کی سپلائی معطل ہو چکی ہے۔ اگر بات کی جائے 2 دن گزرنے کے باوجود ابھی تک پانی کی سپلائی کو یقینی نہیں بنایا جا سکا۔ اگر میرا کیمرہ مین علی زیب دکھا سکے تو بڑی تعداد کے اندر اہل علاقہ اس وقت مختلف جگہوں سے پانی بھرنے پر مجبور ہیں۔ پانی کی پائپ لائن 2 دن گزر جانے کے بعد اب تک ریپیئر نہیں کی جا سکی۔ ہمارے سے کچھ اہل علاقہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر کب سے پانی کی پائپ لائن خراب ہے؟ یہ 3-4 دن سے ہو رہی ہے۔ پانی کب تک وہ کہہ رہے ہیں آ جائے گا؟ ابھی پتہ نہیں ہے کب آئے گا پانی۔ مطالبہ یہی کرتا ہوں کہ جلد سے جلد پانی آئے ہمارے محلے میں۔ یہ ہماری بچیاں، مائیں، بہنیں، یہ سب ادھر پانی بھریں، بہت دشواری ہو رہی ہے پانی بھرنے میں، ان کو بہت مشکل ہو رہی ہے ہم کو ادھر پانی بھرنے میں۔ جی بالکل، اہل علاقہ کا یہی کہنا ہے کہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے سے کچھ اور علاقے میں کب تک پانی چل جائے گا؟ یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی تک بتا رہے ہیں ہفتہ لگے گا، 15 دن لگیں گے۔ بہت پریشانی ہے پانی سے، بہنیں اور مائیں پانی اٹھا کے نیچے سے بازار سے لے کے آ رہی ہیں بھر کر، بہت پریشانی ہے۔ ہمارا تو مطالبہ یہی ہے کہ جلدی ہو جائے، 1-2 دن میں ہو جائے، جلدی ہو جائے۔ کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ انتظامیہ سے؟ جلد از جلد نہ اسے کلیئر کیا جائے۔ یہ پرابلم آئے دن آ جاتی ہے، ان کو چاہیے کہ جلد از جلد اسے چیک کریں۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کسانوں کا شوگر مل سے کرشنگ میں تاخیر کا شکوہ، گندم کی کاشت اور پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کسانوں کا شوگر مل سے کرشنگ میں تاخیر کا شکوہ، گندم کی کاشت اور پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں عبدالرحمان۔ جی عبدالرحمان، بتائیے گا کیا کہنا ہے کسانوں کا؟ جب بات کریں کمان کے حوالے سے تو یہ بڑا مسئلہ آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہاں پر شوگر ملز کی جانب سے کرشنگ کا آغاز تو ہو گیا، لیکن کسان بزیدہ ہیں کہ یہاں پر تاخیر سے آغاز ہوا اور اس کی وجہ سے گندم کی فصل پر مسئلہ بھی بنے گا۔ تو یہ کیا ایشوز ہیں؟ چیئرمین پاکستان کسان کونسل ہمارے ساتھ موجود ہے، طاہر صاحب بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کریشنگ سیزن ہے گنے کی ملن چلانے کا، وہ قریباً 1.5 ماہ لیٹ شروع ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو زمیندار گنے کی فصل اٹھانے کے بعد گندم کی فصل لگانا چاہ رہا تھا، اس کا وہ ایریا کم ہو گیا، وہ نہیں لگا سکا پراپر ٹائم سے، جس سے ہماری گندم کی جو پیداوار ہے کم ہونے کا خدشہ ہے۔ دوسرا جو گنے کا ریٹ ہے وہ سندھ کے مقابلے میں پنجاب کا بھی آنا چاہیے۔ یہاں بھی ہمیں 425 وہاں پہ اناؤنس کیا سپورٹ پرائز، تو پنجاب میں بھی 425، وہاں پہ بھی ڈیزل اور کھاد کی قیمتیں ایکول ہے، پنجاب میں بھی ایکول ہے۔ ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے اور شوگر مل مالکان کو اس چیز پہ
पाबंद बनाना चाहिए कि वो जो शुगर एक्ट कहता है उसके मुताबिक अपनी मिलें टाइम से चलाएं, ताकि ज़मींदार बर वक्त गन्ने की फसल उठाने के बाद गंदम की फसल लगवा सकें और उनको कीमत भी अच्छी मिल सके। यहाँ पे ये हो रहा है कि हर बंदा अपनी मनमर्जी से मिलें चला रहा है, जिसकी वजह से जो ज़मींदार है वो परेशान है, और दूसरा उनको जो पेमेंट है उसका अभी तक तरीक़ेकार वाज़ेह नहीं हो सका। इस हवाले से जो मसाइल सामने आ रहे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर किसानों के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। जी, किसानों के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात नजर आ रही हैं। किसानों का शुगर मिल से क्रशिंग में ताखीर का शिकवा, गंदम की काश्त मुतासर होने का खदशा है। सिंध की तर्ज पर गन्ने की कीमत बढ़ाई जाए, किसानों का शिकवा। किसानों का मजीद कहना था कि गंदम की फसल अहम, काश्त रकबा कम नहीं होना चाहिए। किसानों का आला हुकाम से मसाइल का हल निकालने का मुतालबा। अब्दुर्रहमान हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। मोटरसाइकिल अवामी सवारी अवाम से मजीद दूर हो गई। यामाहा ने YBR 125cc के तमाम मॉडल्स 18,000 रुपये मजीद महंगे कर दिए। अब सार्फिन को 125cc YBR G तमाम कलर्स में 4,71,000 रुपये की मिलेगी। यामाहा ने मुल्क भर में नई कीमतों का इतलाक कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं यामाहा की कीमतों के हवाले से। मोटरसाइकिल अवामी सवारी से मजीद दूर हो गई। आप अपडेट करेंगे इसी हवाले से हमें शहजाद खान। जी शहजाद, बताइएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको यामाहा की नई कीमतों के हवाले से। यामाहा ने YBR 125cc के तमाम मॉडल्स 18,000 रुपये मजीद महंगे कर दिए। शहजाद हमें अपडेट कर रहे हैं। जी शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल, यामाहा कंपनी की जानब से एक मरतबा फिर अवामी सवारी की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और इस मरतबा यामाहा की जानब से YBR 125cc YBR G की तमाम मॉडल्स पर 18,000 रुपये तक कीमत बढ़ाई गई है और अब सार्फिन को 125cc YBR G के तमाम कलर्स 4,71,000 रुपये में मिल सकेंगे। और यामाहा कंपनी की जानब से मुल्क भर में नई कीमतों का इतलाक भी कर दिया गया है। आपको बताते चलें, इससे पहले भी YBR DX की कीमत में भी 17,000 रुपये का इजाफा किया गया था और मजमूई तौर पर एक महीने के दौरान ये दूसरी मरतबा इजाफा किया गया है और अब यामाहा की मजमूई तौर पर जो कीमतें बढ़ाई गई हैं वो तकरीबन 33,000 रुपये के करीब जो है वो बढ़ा दी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया शहजाद अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के गौसिया पार्क में झूले टूट गए, घास भी नायाब, गंदगी के ढेर लग गए, बच्चे बदबूदार माहौल में खेलने लगे। PHA ने गुलिस्तान कॉलोनी के पार्क से नजरें फेर लीं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद के गौसिया पार्क में झूले टूट गए, घास भी नायाब। अपडेट करेंगे इसी हवाले से असलान दुरानी। असलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, PHA के अदम तोजी के बायस फैसलाबाद का इलाका ये गुलिस्तान कॉलोनी जिसका ये गौसिया पार्क है, जहां पर ना सिर्फ झूले टूट फूट का शिकार है बल्कि यहां पर घास जो है वो भी नहीं है, गंदगी के ढेर है। यहां पर बच्चे खेलने के लिए यहां पर आते हैं, मेरे साथ मौजूद भी, इनसे बात भी करेंगे तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर अक्सर यहाँ पर जो सीवरेज का पानी है वो जमा रहता है, वो भी नहीं निकाला जाता। तहम जो इस पार्क की हालत है वो इंतहाई खस्ता हाल है। बात करने से बच्चों से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि यार जब खेलने आते हो तो यहाँ पर कैसी सहूलियात आपको मिलती है? जब खेलने आते हैं तो लोग चाह रहे कि यहाँ पे कुछ कूड़ा फेंक गए होती है, कुछ वो देखें वहाँ पे इतना गड्ढे का गंदा पानी होता है। कभी कभी यहाँ पे तो हर हिस्से में पानी जमा हुआ होता है, बारिश का पानी यहाँ पे, सारी गटरों का बारिश का पानी यहाँ पे आया होता है, तो यहाँ पे खेला सही तरह नहीं जाता। अच्छा, झूले हैं यहाँ पर लगे हुए, कितने झूले टूटे हुए? ये इतनी दफा टूट चुके हैं झूले, अभी भी लगाए थे दोबारा टूट गए झूले, लगवाते भी नहीं है बाद में, अभी बच्चे कल गिर रहे हैं इसकी वजह से। बिल्कुल, झूले टूट फूट का शिकार है, बच्चे के गिरने के वाकयात पेश आते हैं। ये दिखाएं जरा ईमान की क्या सूरत आ रही है। देखें यहाँ पर कूड़ा करकट ही हर तरफ फैला हुआ है और बच्चे बड़ी तादाद में यहाँ पर कॉलोनी का बच्चे आते हैं, खेलने के लिए आते हैं, लेकिन सहूलियात का फुकदान है यहाँ पर। तो यही मुतालबा बच्चों का भी कि इस हवाले से जो PHA वो इस पर नजर करे और ऐसे इलाकों में जिस तरह के पार्क्स हैं उनकी बहाली के लिए, उनकी खूबसूरती बहाल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। यहाँ पर झूले भी टूट फूट का शिकार है और झूले टूटे होने की वजह से हादसा भी पेश आ सकते हैं। दूसरा ये है कि ना तो यहाँ पर घास है और ना ही सफाई सुथराई के कोई इंतजाम किए गए हैं। तो PHA से यही मुतालबा किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया असलान अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के निजी बैंक में सार्फिन के बिलों की रकम में खुद बुर्द FIA कॉम्पोजिट सर्कल ने 47 लाख रुपए रिकवर करा दिए। निजी बैंक की मुलाजिमा फरवा मंजूर की जानिब से वसूल यूटिलिटी बिल्स पर जाली मोहरें लगाई गई थीं। मुलजिमा ने बिलों के नाम पर 47 लाख रुपए वसूल करके खुद बुर्द किया। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद के निजी बैंक में सार्फिन के
बिलों की रकम में खुर्द-बुर्द अपडेट करेंगे। इसी हवाले से हमें अहमद साद जी सयाद बताइएगा। बिल्कुल, सार्फिन के निजी बैंक में जमा करवाए गए बिलों की रकम में खुर्द-बुर्द का मामला, जिसमें जो है FIA कंपोजिट सर्कल फैसलाबाद में इंक्वायरी दर्ज करके निजी बैंक के 47 लाख रुपए रिकवर करवा दिए। निजी बैंक की जो अपनी मुलाजमती फरवा मंजूर की जानिब से वसूल करता यूटिलिटी बिल्स पर जो है वो जाली मोहरें लगाई गई थी, जाली मोहरें लगाकर जो है वो दी जाती थी, जिस पर जो है वो मुलजमा फरवा जो है उन्होंने 47 लाख रुपए के बिलों के नाम पर वसूल करके खुर्द-बुर्द किए। FIA कंपोजिट सर्कल फैसलाबाद को बैंक की जानिब से 22 सितंबर 2023 को दरखास्त मसूल हुई थी, जिस पर जो है वो डायरेक्टर FIA फैसलाबाद जोन राय एजाज अहमद की हिदायत पर इंक्वायरी का आगाज किया गया था। इंक्वायरी ऑफिसर अजमल हुसैन ने कार्रवाई करते हुए मुलव्वस बैंक एहलकार से पैसे रिकवर करवाकर बैंक काम के हवाले कर दिए, जिस पर जो निजी बैंक काम बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। FIA की कारकर्दगी को फैसलाबाद समुद्री रोड बाईपास टॉप सिटी के संगे बुनियाद रखने के हवाले से पुरवकार तकरीब जारी है, आपको लिए चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वक्त की पहले बहुत शॉर्टेज है, आपके साथ 2-3 मुख्तसर सी बातें करूंगा ताकि हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके जा सकें। मेरा थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है और वहाँ पे भी प्रॉपर्टी के काम को देखा, दुबई में और मलेशिया में, फिर उसके बाद लाहौर और इस्लामाबाद में भी कुछ इंटरनेशनल कंपनीज को और कुछ नेशनल कंपनीज को ट्रेन किया, और उसके बाद अब फैसलाबाद में ये अपने तर्ज का अपना ही प्रोजेक्ट है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि राय उमर दराज मेरा स्टूडेंट है और मार्केटिंग उसने मुझसे पढ़ी है, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ने के बाद इतना अच्छा अप्लाई करते हैं कि इंसान खुद सोचता है कि यार मैंने इसको क्या पढ़ा दिया, ये तो उससे ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर उमर दराज की जो नज़र है और उसकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये सिर्फ मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि इस प्रोजेक्ट के साथ मैं अटैच हूँ, बल्कि मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ अटैच हूँ और उनके मालिक के दिमाग को समझता हूँ। और हमेशा मैं हर शख्स से एक बात करता हूँ कि सेल जो है ना जी, वो ड्राइव होती है मालिक के दिमाग से। इस वक्त प्रॉपर्टी का मंदा चल रहा है हर तरफ, लेकिन अगर हम बात करें कि फैसलाबाद में क्या चल रहा है तो हर जगह से ये आवाज आती है कि फैसलाबाद में टॉप सिटी चल रहा है, और ये एक बड़ी खुशआइन बात है, और मेरा ख्याल है कि इस पे आप सब लोगों की भरपूर तालियां बनती हैं टॉप सिटी के लिए। अच्छा, आगे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि टॉप सिटी आखिर चल कैसे रहा है। जब सभी की सेल नहीं हो रही, जब सब लोग डेवलपमेंट नहीं कर रहे, जब हर बंदा ये कह रहा है कि हमारा काम मंदा है, और मैं दूसरी सोसाइटी के मालकान के साथ जब बैठता हूं तो वो बरमला ये इजहार करते हैं कि यार तुसी की कर रहे हो, मतलब हमें समझ नहीं आ रही कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आप किस तरह से सेल को लेके जा रहे हैं, आप कितनी एडवर्टाइजमेंट करते जा रहे हैं, आपने निकालना क्या है। तो उनके दिमाग में बहुत सारे ख्यालात चल रहे होती हैं जिनके जवाबात उनको मेरे बोलने के बाद भी नहीं मिलते, क्योंकि वो जवाबात सिर्फ एक दिमाग के पास है और वो राय उमर दराज है जो कि इसको एक डेडिकेशन के साथ इंप्लीमेंट कर रहा है। अच्छा, अब वो डेडिकेशन क्या है? मैंने उनको ये बात की, कुछ मालिकान के पास मैं बैठा, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी आप भी सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, आपकी लेन में और ये 5 सोसाइटी वाले भी बैठे हैं, मैं आपसे ये कहता हूं कि एक दफा इन 5 सोसाइटीज को आप विजिट करें मुख्तलिफ औकात में, और आप टॉप सिटी को विजिट करें मुख्तलिफ औकात में, मुझे मत बताइएगा। जब आप उन सोसाइटीज को विजिट करेंगे ना, तो जिन 5 दिनों में आपने उनको विजिट किया, आपको काम वहीं का वहीं नजर आएगा, और कोई एक सोसाइटी नहीं होगी जिसमें 5 दिनों में एक दिन भी वहां पर मालिक आपको मौजूद नजर आए। इसके बरक्स अगर आप टॉप सिटी को विजिट करेंगे, और ये मेरा इस हाल में बैठे हुए हर बंदे को ये चैलेंज है, और इसने देखा भी होगा क्योंकि ये वो लोग हैं जो शुरू में जब यहां पर कुछ नहीं था ये तब साथ जुड़े थे, तो इन लोगों ने तो ये अपनी आंखों से देखी हुई हैं चीजें। तो भाई इनको मैंने ये कहा कि आप विजिट करें, और किसी भी वक्त विजिट करें, आपको 5 में से 4 दफा राय उमर दराज इसी तरह किसी न किसी बंदे के साथ खड़ा हुआ काम करता हुआ नजर आएगा, और इतनी नीटी ग्रिटी में कि एक टाइल अगर थोड़ी सी गलत लग गई ना, उसमें थोड़ा सा खला रह गया, तो उसको भी एड्रेस करने के लिए ये बंदा उनके सर पे खड़ा हुआ है, और मैं ये समझता हूं कि ये इस बंदे की एक बहुत बड़ी ग्रेटनेस है। एक बात आपको बताऊंगा, वो एक इंडिया के चैनल पर ना एक बच्चा था, 2 बच्चे बैठे हुए थे, और उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उनसे ना रिपोर्टर कुछ चीजें पूछ रहा था, तो बच्चे ने कहा कि रिपोर्टर तुझे पता है माँ गोद में क्यों उठाती है और बाप सर पे क्यों बिठाता है?
कंधे पे क्यों बिठाता है? तो उसने कहा जी इस वजह से कि माँ गोद में इस वजह से उठाती है कि जहां तक वो देखती है ना, वो कहती है मेरा बच्चा भी वहां तक देखे। बाप कंधे पे इस वजह से बिठाता है, वो कहता है जहां तक मैं नहीं ना देख सका उससे आगे मेरा बच्चा देखे। तो आज एक तो वो बाप जो राय उम्र दराज के साथ बैठे हैं वो ये देख रहे हैं कि उनका बच्चा उससे आगे देख रहा है, उससे बड़ा विजन लेके चल रहा है जो कि ड्राइव हुआ उनके दिमाग से। और एज स्पिरिचुअल फादर में, और जहां से यूसुफ साहब बैठे हैं जो सभी उस्तादों के उस्ताद हैं, ये दोनों लोग राय उम्र दराज को उस फख्र के साथ देखते हैं कि यार ये कितना आगे जा रहा है और हम उस आगे जाने में इसका साथ देने के लिए तैयार हैं। मेरी पीएचडी बिजनेस में है और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। मैंने लोगों को इतनी स्टूडियो से फिल्म कितना है